also done product photography for various advertising and PR agencies, but a passion for food and portraiture pushed her to cover food shots for well-known brands and restaurants. She also enjoys shooting weddings, and she has covered many weddings in a span of more than 10 years. She has a unique style of capturing candid moments and converting them into fantastic wedding stories. She captures beautiful landscapes, flora, and fauna from the Western Ghats of India, and she enjoys shooting tribal portraits and learning their rural habits, lifestyles, and culture. She has held group as well as solo exhibitions in Mumbai and Thane. Many times her photographs got awarded in national and international competition. Nowadays, she is working in educational field and sharing a versatile photographic experience to mass media students. She is also visiting faculty for various media colleges in Mumbai, and she is an assistant professor at SVP Patil College, a very famous college in Dombivli. So friends, let's not waste time and let's put our hands and hearts together, welcoming my dear friend Sangamitra. Over to you, Sangamitra. So yeah, so start your presentation and we'll take it from here. So whoever has any questions or कुछ भी पूछना है, वो that particular segment के बाद बात करेंगे हम लोग. Like पहले Sangamitra, you're sharing the food slides, right? First, Sangamitra, are you sharing your food slides? Yes, yes. मेरा आवाज है ना बराबर? तो आपका food slides present करना, तो जिसको भी कुछ सवाल रहेगा, people can put it on chat, or else food section हम लोग we can ask the questions. फिर आप portraiture में shift करना. Yeah, done. Yeah, thank you. Thanks, Sunil, for a very nice introduction of mine. मैं और सुनील हम लोग बहुत सालों से जानते हैं. That is our is from Savvy. Okay. I know him from magazine. And my journey is from Femina magazine. Just I am showing you my few pictures over here. My most of my work is like a editorial and that photojournalistic base. Because I always like to cover the stories. I like the story. I work with the agencies also. Just see a few pictures of mine. I'm showing you. Sangamitra, you are on mute. You are on mute. Yeah, thank you. Photography is a expression. We always express our feeling through the photographs. Most of my work is a editorial photography. I covered many magazines, but many more magazines. My interest is food photography. This is the editorial shot for Savvy magazine. The theme was the main ingredient was the red wine. This is a desert shot for an editorial for a Savvy magazine. This picture we have to click within a time. There is no extra time for us. We have to think for a proper arrangement, the dish, and within a limited time of period, we have to shoot this. This is the advertising shot purely. लेकिन ये जो है एक glass, it's very challenging shot because that glass transparent glass is there. Wine is also the color is very challenging and the lighting takes a very long time. And the client want the ambience. This is my favorite shot. ये shot मेरा बहुत बार
बहुत जगह पे यूज हुआ है। एक कंपनी के लिए किया था, लेकिन ऐसे ये एक शॉट से मुझे बहुत पैकेजिंग का काम मेरा बढ़ते गया। अ, ये ऐसा ये होते हैं रहते हैं, पैक शॉट चलते ही रहते हैं। पैक शॉट के लिए स्पेसिफिक एक ये रहता है, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो अच्छी तरह से दिखना पड़ता है। अपने को लगता है कि फूड फोटोग्राफी इज वेरी इजी, क्या है इसमें, लेकिन फूड फोटोग्राफी जिसके लिए करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो पैकेजिंग शॉट, और कोई ऐसा ये था इजी टू कुक और इंस्टेंट कुकिंग के लिए एक ये था, एड था, उसके लिए बनाया था। पास्ता, द चीज इज वेरी डिफिकल्ट टू शूट, क्योंकि उसका मेल्टिंग और ये उसका शाइन जो है, इलास्टिसिटी जो है, वो सब दिखाना बहुत ये रहता है, बहुत कम समय में ये करना पड़ता है। और लाइटिंग बहुत चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि उसका शाइन, और इसके ऊपर शाइन नहीं आएगा तो ये पिक्चर बहुत डल डल दिखता है, और इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो चीज इज वेरी, अगेन दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू शूट। और वो चीज मीन्स मेल्ट नहीं होता है, तो उसको एक अलग सा वो बहुत फ्रेश नहीं लगता है। टिपिकल अपना चाय का शॉट, मिल्क, दिस इज स्प्लैश। ये बहुत बहुत समय गया था ये शॉट करने के लिए, लेकिन ये मैंने बहुत बड़े फॉर्मेट के कैमरे पे ऊपर किया था, स्टूडियो हायर वगैरह करके कैमरा भी हायर किया था। लेकिन बहुत समय गया था ये शॉट के लिए। और एक वाइट है, एक तो वाइट ऑब्जेक्ट है, उसमें से स्प्लैश है, और उसके वो बबल्स, बहुत मिल्क वेस्ट भी हुआ था। इट्स वेरी मीन्स इतना मुझे ये जो पाने के लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मेरा ये विश था कि आई वांट दिस शॉट। काम मैं करती रहती हूँ, मेरा हमेशा किधर किधर ये स्टोरीज आती रहती है। दिस इज फॉर अगेन मैगजीन, दिस इज फॉर मैगजीन। डीएनए था, उसके लिए वो पूरे पेज पे फर्स्ट स्टार्टअप पेज पे आया था। दिस इज फॉर फेमिन, रहता है उसके लिए ये हो जाता है। दिस इज अगेन फॉर एडिटोरियल शॉट। फूड के लिए इतनी सारी हमेशा तैयारी रहती है। ऐसा नहीं है कि फूड का सब डिश रख दिया और उसको शूट किया, ऐसा नहीं होता है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, वी हैव टू चेक दैट इज द फूड का कलर, उसको वो कौन से प्लेट में जाएगा, कौन से साइज, मीन्स उसका ये क्या है, कलर कौन सा है फूड का, और उसके आजू बाजू का उसको प्लेटिंग कैसे, दैट लॉट ऑफ थिंग्स टू डेकोरेट द थिंग्स। और अलग अलग रहती है स्टाइल सबकी। एडवर्टाइजिंग के लिए शूट्स they need a blur shots, पैकेजिंग के लिए they want a very clear shots, एडवर्टाइजिंग का जैसे थीम रहेगा वैसे वैसे उनको शॉट्स चाहिए रहते हैं, तो हर एक का स्टाइल अलग रहता है। दिस इज फॉर अ लोकल रेस्टोरेंट, ये बहुत फेमस है, दैट इज शीरा, शीरा एंड उपमा। ऊपर के भी जो टेक्सचर है वो आने के लिए बहुत मीन्स तो ही उसका फ्रेशनेस लगता है। और ये कॉम्बिनेशन में डिश बहुत से रेस्टोरेंट में मिलती है। तो अगेन दैट इज द बनाना लीव्स एंड वेरी टेम्पटिंग शॉट। दिस इज आल्सो फॉर अ रेस्टोरेंट, ये कोकम शरबत एंड मिल्क। तो ये मैंने क्या किया था, वो लोग ने मुझे ग्लास दिया था, लेकिन बॉटल फॉर अ प्रेजेंटेशन, लेकिन इसलिए उसको एक अच्छा फील भी आया, और इट लुक्स नाइस प्रेजेंटेशन। अगेन दिस इज द एडिटोरियल शॉट। आइसक्रीम भी बहुत चैलेंजिंग रहता है, ऐसे लगता है कि आइसक्रीम का जो टेक्सचर है, आइसक्रीम का टेक्सचर, लाइट, और उसके बाजू के सराउंडिंग्स, ये है। तो ये हम लोग के रेसिपी पेजेस की शूट्स है। तो यहाँ पे ज्यादा ट्रिकी भी हम लोग को ये नहीं था अलाउड, क्योंकि माय ऑलवेज एडिटर से आस्क मी कि लोगों को घर पे किया है वैसे दिखना चाहिए करके। तो हम लोग है ना वैसे कोशिश करते थे कि रियलिस्टिक पिक्चर्स दिखे करके। उसमें एडिटोरियल शॉट में ज्यादा ये नहीं रहता था कि फूड स्टाइलिस्ट आके बहुत कुछ उसको रिमिक्स कर देगा। दिस इज द रियल आइसक्रीम।
दिस इज ये एडवर्टाइजिंग शॉट, ये भी मैंने बहुत बड़े फॉर्मेट के कैमरे में किया था, स्टूडियो हायर करके, कैमरा हायर करके वगैरह, लेकिन अच्छा लगा था शॉट। दिस इज सो क्रिएटिव, ये ऐसे मेरे पोर्टफोलियो के लिए शूट किया था मैंने। दिस इज एडिटोरियल। एडिटोरियल शॉट्स करने के लिए हम लोग को समय नहीं मिलता है, जो समय दिया जाता है वही समय में करना पड़ता है। दिस इज सीजनल फ्रूट्स, ये सीजनल फ्रूट्स आर्टिकल के लिए हमको बहुत लगते रहते हैं, इसलिए हमेशा सीजनल फ्रूट्स के शॉट्स करते रहना पड़ता है। ये तो फिश सबका ये है, एक रेस्टोरेंट के लिए किया था ये शॉट, जब भी रॉ फिश आए थे तभी, तो उनका सब बाद में ये सब पक गए, लेकिन फिलहाल शुरू में मैंने एक ऐसा एक बल्क शॉट, एक ग्रुप शॉट ले लिया था। दैट इज दिस इज अगेन फॉर अ फेमिना, उनका डाइट फाइल करके एक अच्छे आर्टिकल्स रहते हैं। दिस इज फॉर कुक बुक, सूप का शॉट है। ये एक पैकेजिंग शॉट है, इसके लिए राइस कंपनी के लिए शूट किया था, लेकिन इनका राइस मीन्स ऐसा राइस शूट करने के टाइम बिरयानी राइस जब दिखाना रहता है तभी वो जो उसका स्टिकीनेस दिखना नहीं चाहिए, मीन्स ऐसा खुला खुला दिखना चाहिए, तो उसके लिए प्रिपरेशन में बहुत सारी आइडियाज करनी पड़ती है, अदरवाइज दे कांट, नहीं तो सिर्फ वो ऐसा चिकट चिकट ऐसा वो स्टिकी दिखेगा, तो it won't be acceptable shot. It's a desert. Okay. This is editorial shot. ये केक एंड पेस्ट्रीज आर यू नो, क्योंकि और ये सब्जेक्ट शूट करने के लिए बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि केक उसका कलर भी एक ब्राउनिश जैसा रहता है, वुडन टेक्सचर के ऊपर बहुत अच्छा दिखता है, और उसके जो ये है जो ग्रेनी पार्ट है वो लाइटिंग में बहुत अच्छा दिखता है। The chocolate is again challenging shot because color is very dark और ये सरफेस बहुत फ्लैट रहता है, तो उसको और शाइनी रहता है, तो लाइट में उसको बहुत केयर करना पड़ता है कि इसके रिफ्लेक्शंस और जो शाइन है उसको शूट करने के लिए। अगेन एडिटोरियल शॉट, ये शॉट ऐसा था तो उसको डायरेक्ट पब्लिश ऐसे हो गया, वो उसके ऊपर टेक्स्ट जैसे लेआउट था। अगेन डेजर्ट, दिस इज अ स्टॉक शॉट, ये तो एक रेस्टोरेंट के लिए किया था। अगेन एडिटोरियल शॉट, स्पाइसेस आर वेरी बोलते हैं ना, सबका एक ये रहता है, अटैचमेंट वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि स्पाइसेस हर एक स्पाइसेस की अलग अलग ब्यूटी है, उसको आप जितने लाइटिंग करोगे और जितने अलग अलग तरह के अरेंजमेंट करोगे तो इट इज वेरी एक्सप्रेसिव एंड वेरी अपीलिंग एंड बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है ये शॉट करने के लिए भी और देखने के लिए भी। गार्लिक has its own shape and every artist love to shoot the garlic and ये हर एक, क्योंकि उसकी टेक्सचर ही बहुत अच्छा है, उसका कलर टेक्सचर एंड द शेप, तो लाइट में डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ये बहुत जितना उसको लाइटिंग करोगे, जितना उसका बैकग्राउंड बढ़िया बनोगे, इट हैज अ वेरी नेचुरल ब्यूटी। she is a chef from she is actually Vittal Kamath, she is a daughter of Vittal Kamath, शेफ है वो, तो उनका इंटरव्यू था तभी ये शूट किया था, ऑर्किड पे शूट किया है। दीज आर माय एडवर्टाइजिंग एजेंसी के छोटे एजेंसीज के उनके एडवर्टाइज के लिए जो कैंपेन किए थे। दीज आर प्रोडक्ट शॉट्स। अभी जो नए स्टूडेंट है वो लोग पूछते हैं हमेशा कि प्रोडक्ट शूट पे क्या है, लेकिन अभी ऑनलाइन सेल के लिए बहुत प्रोडक्ट शूट की बहुत जरूरत है। दीज आर दैट लेदर का मैंने किया था कैटलॉग, तो लेदर कंपनी से वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है,
तो उनकी प्रोसेस दिखानी थी और व्हाटएवर, एक वीडियो भी किया था और एक ऐसे स्टील शूट्स से कैटलॉग भी किया था। इनके पूरे वेबसाइट पे मेरे पिक्चर्स है ये कंपनी के। सगमित्रा, अगर फूड का हो गया तो हम लोग फूड के बारे में कुछ सवाल पूछ सकते हैं क्या, कि यू या वांट टू डू फूड इज ओवर। बेटर? आई थिंक देन यू कैन स्टार्ट विद द प्रोडक्ट शॉट्स। ओके, सो आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। लाइक काफी लोग ने ऐसा पूछा है कि फूड स्टाइलिस्ट का बेसिक, मोस्ट ऑफ द फूड शॉट्स में फूड स्टाइलिस्ट इन्वॉल्व है क्या? आपके जो फूड शॉट्स जो हुए नहीं, आपने जो कैसे है ना, फूड शॉट है ना 3 टाइप के रहते हैं। एक अच्छा 3 टाइप के मीन्स कैसे रहते हैं कि कभी कभी क्लाइंट तुम लोग को, क्लाइंट जो रहता है रेस्टोरेंट की क्लाइंट तुम्हें डायरेक्टली बता देते हैं कि हमें हमें ऐसे ऐसे शॉर्ट्स प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए रेस्टोरेंट में लगाने के लिए। दैट टाइम आपके बजट के ऊपर निर्भर रहता है कि यू कैन हायर द फूड स्टाइलिस्ट और नॉट। हाँ, तो वो डिपेंड्स कि तुम लोग का बजट है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ फूड स्टाइलिस्ट, क्योंकि फूड जितना तुम लोग अच्छा प्रेजेंट करोगे उतना वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा और ज्यादा टेम्पटिंग दिखेगा। हाँ, तो और फूड स्टाइलिंग एक ऐसी चीज है कि सिर्फ वहां पे फूड बनाना नहीं है, फूड बनाना पड़ता है और उसको प्रेजेंट भी करना पड़ता है एक नए तरीके से। हाँ, तो वही वो रेस्टोरेंट जो ओनर है तो उनको वो अच्छा लगता है। वो एक टाइप हो गया कि दूसरा है वो एडिटोरियल। एडिटोरियल मीन्स बहुत से अभी ऑनलाइन ऑनलाइन मैगजीन्स है और प्रिंट मैगजीन्स है, तो उनके लिए और आजकल रेसिपी के पेजेस बहुत हिट जा रहे हैं। रेसिपी के मीन्स ऐसे अभी ऐसे कौन सी भी साइट नहीं है कि जहाँ पे रेसिपी के वीडियोस, रेसिपी के फोटोज नहीं है करके। इसलिए फूड फोटोग्राफी इज ऑलवेज डिमांडिंग। क्या ऐसा नहीं है कि लोग बहुत सोच रहे हैं कि अभी क्या हर एक जन आके मोबाइल पे शूट करता है तो अभी क्या जरूरत है फोटोग्राफी का और ऐसा। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि फोटोग्राफी का काम चालू हो गया है, क्योंकि वर्चुअल मीडिया एंड दैट ऑनलाइन सेलिंग ये सब फोटो देखकर ही हो रहा है। हाँ, तो तुम लोग जितना उसको खूबसूरत बनाओगे वो फ्रेम को, उतना तुम्हारा क्लाइंट उसको ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सेप्ट करे। हाँ, तो एडिटोरियल शॉट में कभी क्या रहता है, डिशेस आर रेडी एंड यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू शूट। लेकिन ऐसे नहीं है, आपको थीम दिया जाता है तो वो थीम से आपको प्रिपेयर करके भी जाना पड़ता है, कि ऐसे नहीं है कि एवरीथिंग इज रेडी। तो वहां पे थोड़ा सिलेक्शन, क्रॉकरी का सिलेक्शन, वॉट एवर वो फूड का बेस क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो ऑलवेज इट इज बेटर। वहां पे आपको कभी कभी रेस्टोरेंट की शेफ आपको हेल्प करने के लिए रहता है, लेकिन यू शुड नो कि वो इसमें क्या है, वो फूड में क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये फूड का पिक्चर कहाँ पब्लिश होने वाला है। कभी कभी एयरलाइन के मैगजीन रहते हैं, तो बैकग्राउंड आपको मालूम होनी चाहिए थोड़ी कि ये क्या है। तो फिर उसके बाजू की जो आप क्रॉकरी, आपकी जो उसकी स्टोरी बनाना चाहते हैं तो वो कंप्लीट होती है इफ यू नो द सब्जेक्ट। हाँ, And आप what lens you normally use for food shots, like any for this? फूड शॉट What? के लिए आई एम प्रेफरिंग टू लेंसेज। टू लेंसेज मीन्स कैसे है कि एक तो 100 105 है निकॉन का, दैट इज 2 ये जो अपना माइक्रो है वो, तो दैट इज द बेस्ट। बट कभी कभी क्या रहता है, द शॉट्स आर बिगर, the shots are bigger and the distance is very less। मीन्स मुझे 2 टाइप के लेंस चाहिए, तो दूसरी एक मेरे पास जो लेंस है वो है 24-105, लेकिन उसके ऊपर मेरा माइक्रो भी है। Okay, okay. हर एक वाइड में मुझे माइक्रो मिलती है, तो इसलिए मेरे शॉट्स थोड़े कभी कभी इतने ब्लर, क्योंकि बहुत से अभी जो ब्लर का फैशन है, लेकिन बहुत से कभी कभी जो पैकेजिंग के शॉट है वहां पे सब ऑब्जेक्ट तुम्हारे ब्लर नहीं चलते। ब्लर तो वहां पे ये सब देखना पड़ता है कि तुम्हारा क्या है, लाइटिंग कैसा है, तुम्हारा डिस्टेंस कैसा है, कि सब कुछ लेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है कि अपने पास आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बट लेकिन आई एम प्रिफरिंग दैट इज 105 माय निकॉन का लेंस, एंड सेकंड मेरे पास 28-105 है। तो उसको मीन्स अभी वो 18-120 है, तो उसको मैं मेरा माइक्रो है उसमें, Okay. तो माइक्रो मुझे बहुत इजी पड़ता है।
And lighting में क्या use करते हो आप? You use a softbox or umbrella or what exactly you use? Yeah, I have a Elinchrom का जो नए अपने digital lights है. अच्छा. I'm using that three lights, minimum 3 lights. 3 lights for a shot. Okay. And then now what is the बाहर क्या रखते हो? You have a softbox or you keep umbrella or you keep a dish. So what do you keep? So soft boxes. Softbox. That is the main light you say. Food shoots के लिए grid हमेशा चाहिए आपके पास, क्योंकि Okay. lighting, reflection, cut lights, ये सब Okay. आपको grid से ही possible है. Okay. Okay. So किसी का एक का सवाल था कि अगर काफी सारे क्लाइंट्स लोग के पास बजट नहीं होता फूड सैलड्स के, because food salads they always charge around 25 to 40,000 rupees per day, and there are clients who can't afford the food salads, and the chef is not good for his styling. So what do you do, like basically as a photographer? Then you have to study how to present it. You have to make the. अभी YouTube में काफी सारे ideas बना देते हैं. और देखो एक चीज ऐसी है कि प्रेजेंटेशन के लिए तुम लोग को स्पेस की जरूरत नहीं है ना. तो यू कैन सिंपली भी कुछ तो आइडियाज करके शेफ का हेल्प से कुछ तो ये कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. तो उसको डेकोरेशन आप खुद कर सकते हैं, लेकिन उसको है ना तैयारी मींस बोलते हैं ना प्रिपरेशन और स्टडी, वो देना बहुत जरूरी है. और यू कैन डू एट योर ओन, प्रॉब्लम नहीं है आती है. और मेरा और एक सजेशन ऐसा है कि आप सडनली जाके करोगे चलो आज मैं फूड शूट करता हूँ, तो इट नीड अ प्रैक्टिस. आपको मैंने वेरी गुड मत चल मा माइक्रोफोन अनम्यूटेड दिन में वीडियो स्टॉप ना बस म्यूट कर दो ना संगमित्रा सबको. Can you mute them? Who is that? I don't know. Yeah, that's okay. Yeah, fine. Carry on. फूड शूट का प्रैक्टिस आपको चालू रहना चाहिए, और Okay. फिर आपको उसमें मजा आएगा. Very important question. Can a photographer only settle and he can only do food in India? Like abroad में you can see a lot of photographers, they only shoot food. तो आपको लगता है इंडिया में मार्केट ऐसा है कि फोटोग्राफर सिर्फ फूड शूट करके he can survive? I can't hear you. Can you repeat it? चल मैं जाता. Somebody has to go mute over there. I think there is somebody who is talking. So in case, yeah. अलका मैडम आपका म्यूट कीजिए. हाँ आपका म्यूट कीजिए माइक. हाँ. एक अलका. मिनट मैं करती हूँ. एक मिनट. That's okay. संगमित्रा, if you can. बाहेर जाना. कसं बाहेर जाणार मला कळेना. Sangamitra, can you mute them? Because you're a host, you can mute them. या ठीक है, आप शांत रहिए तो वो इजी हो जाएगा. ओके, ठीक है. A lot of photographers from USA or abroad, they only do food photography. So आपको लग रहा है कि मुंबई में या इंडिया में ऐसा कोई food photography करके a photographer can settle and he can only do food photography, बाकी दूसरा कोई journal of photography नहीं करेगा? Is it possible in India? कि यहाँ पे ना अपने क्या बोलते हैं ना, इट्स योर लुकआउट. फर्स्ट थिंग इज फोटोग्राफी एक खुद ऐसी चीज है कि वो उसको समय बहुत देना पड़ता है, कि ऐसे नहीं है कि आप ये पार्ट टाइम कर सकते हो. क्रिएटिव शॉट के लिए थोड़ा समय देना, प्लानिंग, और ये प्लानिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको सपोर्टिंग कुछ दूसरा बिजनेस चाहिए. लेकिन आज मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूंगी. सपोर्टिंग बिजनेस मींस आजकल सोशल मीडिया के लिए प्रमोट करने के लिए क्लाइंट को उस प्रमोटर चाहिए रहता है. Okay. These such of jobs, such of works you can select. Okay. यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट है प्राची जी, उनका मैसेज उनका एक आया है. If we click for a hotel, there are multiple dish and variety. So how can we structure the workflow for the same? एक होटल के काफी सारे multiple dishes होते हैं ना. Can you repeat me please? If we click for the hotel, there are multiple dish and variety. So how can we structure workflow for the same? Prachi, you would like to speak? We can unmute you, or else you can unmute and speak. Prachi, if in case you can hear my voice. Yes. Yeah. Okay. Please go ahead. You can hear me now? Yeah, perfect. All right. It's been 2 months now. There was one restaurant who approached, and they had multiple dishes to be shot. Okay. So he in return asked me a question, ma'am, how much can you click?
So I said, it depends upon how much time you have. I can click n number of dishes. That is not a problem. But he says this is such a huge menu card. So how can we go about that? Like if they have more than 25, 30 or even 100 dishes, how can we structure that workflow? Plus, how can we actually give them a package also, or, pricing? Because that gets very tricky about how to price, because they cannot quote any specific number for dishes. So should we do that on time base, or how can we go about it? And yeah, this is first question. And I'll put the second question also, so then I can go mute. Second question is, it's very important in food photography to have different kind of crockery and beautiful backdrops, right? So we can make some DIY backdrops by our own. However, crockery is, we have specific sets with us, but we don't have so much of crockery. So is there any place we can rent all this thing from? Yeah. Yeah, that's it. Yeah. Both questions are very good. You can hire ये crockery. ऐसे बहुत से shops हैं मुंबई में, अंधेरी में है और 2-3 जगह पे है. You can Right. get link or you can get their numbers. So they provide you the crockery. But rent वहाँ पे rent भी रहता है. तो एक दिन के लिए रहता है और आपका टाइम जैसे रहेगा वही. और अभी आप क्रॉकरी लेके आते हैं तो वही टाइम पे आपको शूट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका रेंट बढ़ते जाएगा. और यहाँ से क्लाइंट का प्रेशर रहता है कि हमको विदिन बजट में ही हमको करना है. तो दैट इज टोटली इन योर मैनेजमेंट. यहाँ से कैसे ना हम लोग बीच में रहते हैं. आपको क्लाइंट को भी आपको काम भी चाहिए रहता है और आपका फेवरेट काम है फूड फोटोग्राफी, तो आपका पैशन है तो आपको फोटोग्राफी भी करनी रहती है और यहाँ से आपको वो बजट पे भी बिठाना रहता है. तो इट इज अ पार्ट ऑफ टोटली मैनेजमेंट. कम समय में कैसे काम कर सकते हो, क्योंकि आजकल हम लोग कितना भी समझाएंगे क्लाइंट को कि समय लगता है, कि ऐसे लगता है, टेक्निकल थिंग रहती है, वो रहता है. तो वो सब उनको समझाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, क्योंकि इतना भी इजी नहीं है कि मोबाइल में आके आपने शूट कर दिया और वो पिक्चर पब्लिश कर दी, क्योंकि मोबाइल में भी बहुत से रिस्ट्रिक्शंस है. तो वो पिक्चर्स इसलिए सब पिक्चर्स मोबाइल पे नहीं हो सकते. तो दैट टाइम यू नीड दिस स्पेशलाइज्ड एसएलआर कैमरा एंड सेटअप्स. तो वही टाइम पे आपको क्लाइंट को कन्विंस करना चाहिए कि आपके शूट्स में आपको करके देती हूँ, लेकिन आपको मुझे थोड़ा आप सिर्फ मुझे वक्त में सपोर्ट करिए. मैं फिर बजट में आप वो आपका लुकआउट है और आपके मीन्स कैसे बजटिंग रहेगा वो उसके ऊपर है, लेकिन समय उनके पास से आपको मांगना ही पड़ेगा. और समय नहीं देंगे तो काम कैसे रहेगा ना. तो और दे हैव ह्यूज डिस्टेंस. ऐसे नहीं है कि ये, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि कैसे है. कोई किसी को थोड़े असिस्टेंट और फूड स्टाइलिस्ट का हेल्प, नहीं तो फिर होटल के शेफ लेके उसको नंबरिंग करना पड़ेगी, कौन से डिश करने हैं, कौन से को डिशेस है, क्या है. तो एक एक सेटिंग आप पूरा पेपर वर्क करते हो तो आपका काम 2 दिन में निपट जा सकता है. तो मैक्सिमम 3 days. तो दैट इज फूड फोटोग्राफी. ऐसा नहीं है कि आप मीन्स ऐसा देखने के लिए बहुत इजी लगता है और सडनली कैमरा उठाया और आप लोग काम करने के लिए गए, ऐसे नहीं है. एटलीस्ट आप प्रैक्टिस के लिए है ना 15 दिन के बाद में एक शॉट घर पे करना चाहिए. दो इट इज अ स्मॉल सब्जेक्ट, लेकिन वो स्मॉल नहीं है. आप जब एसएलआर कैमरा, लाइट्स और वो फूड सब रखते हैं, क्योंकि फूड इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल सब्जेक्ट. जैसे माइक्रो फोटोग्राफी कहते हैं ना, वैसे ही कि इतना स्मॉल सब्जेक्ट रहता है. और स्मॉल सब्जेक्ट ये जो फूड है वो आपको स्क्रीन में बड़ा मींस वो टेम्पटिंग दिखना चाहिए. तो वो थोड़ा भी उसमें मिस्टेक हुआ, राइट, थोड़ा बेस्ट जाता है. थोड़ा भी मींस तुम्हारा फूड बहुत फ्रेश है, लेकिन उसका कोरिएंडर का लीव्स में थोड़ा ब्लैक स्पॉट आया, तो वो पूरा शॉट आपका क्या हो गया, वेस्ट गया. लेकिन फोटोशॉप पे थोड़ा एडिट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फिर फोटोशॉप के लिए अलग समय लगता है और यू नीड अलग फोटो आर्टिस्ट. मैडम सभी एक्सपर्टीज अपने पास नहीं रहती है. तो इट इज वेरी डेलिकेट और यू नीड अ प्रैक्टिस, क्योंकि जो कोरिएंडर रहता है, करी लीव्स रहते हैं, पार्सली रहती है, व्हाटएवर जो कुछ रहेगा वो
पेरिशेबल थिंग्स रहती है, और हीट लगने के बाद वो सडनली क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इतनी छोटी छोटी चीज है, अगेन दैट रिफ्लेक्शन ऑफ क्रॉकरी। बहुत से चाइनीज ये है, नहीं तो फिर वो जो अपने कॉन्टिनेंटल फूड है, वो जो लाइट कलर के डिशेस रहते हैं, तो उसके लिए हमेशा व्हाइट बेस्ड क्रॉकरी लगती है। तो व्हाइट बेस्ड क्रॉकरी वापस लाइटिंग में उसको ये करने के लिए, अच्छे दिखने के लिए आपको वापस अलग तरह की मीन्स बहुत सोच के लाइटिंग करनी पड़ती है, कि ऐसे नहीं कि सॉफ्ट बॉक्स एक बाजू बाजू पे रख दिया और लाइटिंग हो गई है, ऐसे नहीं होता है। और कैसे रहते हैं, मतलब फैशन शूट पे, मॉडल शूट को आप बोल सकते हो कि आप थोड़े आगे जाओ, पीछे आओ, लाइट ये करो। यहाँ पे है ना, सब कुछ आपको करना है। आप आप ही डायरेक्टर हो। आप मीन्स बहुत सी चीज आपको जो फ्रेम में दिखती है, वैसे के वैसे आपको उधर जाके प्लेटिंग में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना रहता है। नहीं तो फिर आपके पास जो असिस्टेंट है, ये सब है ना, बाय प्रैक्टिस से आपको इसका क्विकनेस बढ़ेगा। फिर पहले आपको एक दिन में आप 8 समझो 6 शॉट करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद आप 8 शूट कर सकते हैं। तो इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस अगेन। Ronnie sir, you have any questions? Ronnie sir? Ronnie sir, you are on mute. No, I have no questions right now. Okay, If there is, okay. I'll tell you. So I think we go ahead. Like एक लास्ट क्वेश्चन था, एक किसी का आया था, ये आपने जो वाटर स्प्लैश किया था, वो जो मिल्क का किया था जिस तरह, तो उसके लिए आपने क्या कोई बर्तन में किया था या कोई फिश टैंक में किया था, कि कैसे किया था? बिकॉज वाटर भी वो बाउंस होने का भी एक सिस्टम होता है ना, व्हेन यू बाउंस दैट। लास्ट क्वेश्चन। हम लोग ये कर रहे थे, डाल रहे थे। तो what was it like? It was a vessel or it was a glass? Okay. और वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हाथ से डाल रहे थे। Okay, so you use high speed sink का कुछ यूज किया था क्या तुमने लाइटिंग में? हाँ, हाई स्पीड सिंक यूज किया था तुमने? yes, yes. ओके थोड़ा स्पीड उसमें ज्यादा था, और व्हाइट था ना, इसलिए बहुत ट्रिकी है। तो ट्रिकी लाइटिंग था। व्हाइट को ऐसे लगता है, लेकिन दिस इज हाई की पिक्चर्स। ओके एक सवाल मेरा भी है मैडम। का बेस बहुत अच्छा चाहिए। या अशोक भाई, आपको कुछ सवाल है? हाँ, मेरा एक सवाल है कि लाइटिंग और कंपोजिशन में ज्यादा समय लगता है या अरेंजमेंट में, शॉट को अरेंज करने में ज्यादा समय लगता है फूड फोटोग्राफी? तीनों चीज अलग अलग है। इट्स आप जितने ना डीपली इन्वॉल्व होते हैं फोटोग्राफी में, ये कैसा है ना, हर एक स्टोरी जैसा है। अपना डायरेक्टर सिनेमा कैसा रहता है, दैट इज वैसे ही रहता है। आप जितने इन्वॉल्व होते जाते हो, उतना उसका समय बढ़ता जाता है। और लेकिन जितना समय बढ़ता है, उतना परफेक्शन ज्यादा आता है। और तीनों चीजों आपको ही करनी है, उसकी अरेंजमेंट। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन समय ज्यादा किस में लगता है आपके हिसाब से? ज्यादा लाइटिंग में लगता है या अरेंजमेंट में लगता है कि ये यहाँ आना चाहिए, वो वहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा? अरेंजमेंट थोड़ा आप प्रिपेयर करते हो, थोड़े प्री प्लान रहते हैं। हाँ, थोड़ा प्री प्लान करते हैं, तो अरेंजमेंट चेंज नहीं करते हो, तो लाइटिंग में थोड़ा कम समय जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मतलब तीनों चीज हमेशा अलग अलग करते हैं। एक बार ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, फिर वापस लाइटिंग चेंज करते हैं, फिर शूट करते हैं, फिर वापस लाइटिंग चेंज किया तो फिर वापस ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक। आपको समय बचाना है और आपकी क्लाइंट की लीज ज्यादा है शॉट्स की, तो आपका पेपर वर्क बहुत जरूरी है। So we go with the मैक्सिमम कितने शॉट हो सकते हैं उसमें, अगर आप बार बार लाइटिंग चेंज करोगे तो एक दिन में मेरे ख्याल से 8 या 10 शॉट से ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे। नहीं, या जो स्पेशलाइज शॉट है ना, ज्यादा से ज्यादा 6, स्ट्रेच करके 8। ये फूड स्टाइलिंग के हेल्प लेके ये स्पीड है। आप कौन से फूड स्टाइलिस्ट के साथ काम करते हैं? आपका कोई पर्टिकुलर फूड स्टाइलिस्ट है जो पर्टिकुलर जो? मैंने बहुत जन के साथ किया है, आरती के साथ किया है। ओके। काफी नए अभी नए लोग भी हैं बहुत से। अच्छा, ओके। प्रियंका करके है, भाईकला में रहती है। उसने अभी मुझे एक अच्छा ये किया था, एक एड फिल्म शूट की थी हम लोग, तो यहाँ पे थी वो, मर्ड में शूट किया था। तो मैंने सब स्टिल किए थे शूट्स, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी हेल्प की थी। ओके। शी इज अ स्टूडेंट एक्चुअली, कैटरिंग कॉलेज की स्टूडेंट थी, लेकिन अभी उसका भी खुद का रेस्टोरेंट और कुछ फूड पार्सल करती है, और ये एडवर्टाइज भी शूट करती है। फाइन। सो वी गो अहेड विद फूड का। अभी आगे आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो एटलीस्ट
अभी Yes. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं अभी आपका पीपल और जो कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट शॉट्स के बाद यू कैन गो विद द पीपल सिंस वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम. This is a leather. लेदर के लिए भी लाइटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शाइन बहुत शाइनी है, और उसको शाइन कट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक एंगल से ही शूट करना पड़ता आपने स्क्रीन शेयर किया क्या? है. या इट इज That is shared. Okay. दिस इज अगेन द रिफ्लेक्टिव प्रोडक्ट, हाईली रिफ्लेक्टिव. इसको थोड़ा फोटोशॉप किया है. दिस इज वेरी क्रिएटिव. ये मेरे पोर्टफोलियो का ये है. दिस इज पोर्टफोलियो इमेज. लेकिन थीम थी यहाँ पे, मेरे को वो धुआं भी चाहिए था, इसके जो एक जो फ्लेम है वो भी चाहिए थे. एंड दिस इज वाइट कलर टोटली. तो ये मैंने काफी समय देके शूट किया हुआ है. और ये जो शार्पनेस है, मुझे ना बहुत जन को ब्लर पिक्चर अच्छा लगता है, लेकिन ब्लर पिक्चर और शार्प पिक्चर ये दोनों में बहुत डिफरेंस है. दोनों में चैलेंज है. शार्प पिक्चर शूट करने के लिए भी बहुत बहुत डिफिकल्ट, बहुत समय देना पड़ता है. लाइटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ती है, तो ही उसका शार्पनेस और क्रिस्टल क्लियरनेस और तुम लोग का ऑब्जेक्ट व्हाटएवर बैकग्राउंड के साथ बहुत अच्छा दिखता है. ये भी मैंने मेरे पोर्टफोलियो के लिए किया था. अभी थोड़े पीपल शॉट है. प्रोडक्ट्स मैंने सिलेक्टेड कंपनी के लिए प्रोडक्ट शूट किए थे. ये सब मेरे एडिटोरियल शूट्स है, जो कॉर्पोरेट मींस कोई इंटरव्यू सब ये थे. लेकिन कभी कभी कवर पेज के शूट्स आ जाते थे, तो मुझे पहले मालूम नहीं रहते थे इंटरव्यूज में कि ये कवर पेज का शॉट है करके. और मैंने ऐसे उनके नेचुरल मूड में शूट किए थे सब, जो मेरे पास अवेलेबल बैकग्राउंड थी व्हाटएवर. उनका मीटिंग चालू था तभी ये शूट किया हुआ है. लेकिन मेरे लाइट्स, मैं हमेशा मेरे लाइट्स, मेरे बैकग्राउंड शूट कहाँ भी होने दे, कैसे भी होने दे, कितने समय का भी होने दे, बट आई एम ऑलवेज विथ माय इक्विपमेंट. मेरा खुद का कैमरा रहेगा, बैकग्राउंड रहेगी और लाइट रहेगा. ये 3-4 चीजें मैंने हमेशा शूट के एडिटोरियल शूट में हमेशा साथ में रहती. Iyengar, she is also IAS officer, Chandra Iyengar. इन्होंने भी समय बहुत कम किया था, तो वो भी उसमें उनके ऑफिस में ही ये शूट किया हुआ है. ये भी ऑफिस में शूट किया हुआ है. दिस इज अगेन अ कवर स्टोरी. अभी ये भी एक लेकिन इनके ऑफिस में इतनी अच्छी जगह नहीं था, और मुझे इनका सब बैकग्राउंड से ये केबल एंड टेक्निकल थी. तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मुझे ऐसी आपकी ये बैकग्राउंड चाहिए. तो फिर उनको मैंने उनका सर्वर रूम में, जहाँ पर एक्चुअली कोई जाते नहीं है, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे ऐसा एक शॉट चाहिए. तो फिर हम लोग सर्वर रूम में गए, और ये पीछे का उनका सब इलेक्ट्रॉनिक सब दिख रहा था, और वहां पे ये शूट किया. लेकिन ऐसे कम, बहुत समय कम रहता है. दीज एमडीज आर ऑलवेज कैसे कि बहुत बिजी रहते हैं. फोटोग्राफी उनको लगता है कि नहीं, इतना इंटरव्यू के टाइम भी आप शूट कर लो, ऐसे ही होते हैं. लेकिन दैट टाइम यू नीड अ करेज टू आस्क अ टाइम, और थोड़ा सा उनको आपको बोलना आना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे शॉट चाहिए, ऐसे करना है वगैरह. तो दे हेल्प सम टाइम. वही शॉट ये पब्लिश हुआ था, वो सीरीज का. That background, you can check that background. ये था. Instead of plain background, I use that. ये बाकी सब एडिटोरियल उनका स्टोरी है. This is ये मेरिडियन अपने रीजनल मैनेजर. इन्होंने मुझे वॉच देख के बताया था, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट 1 मिनट इतना, मैं आपको 1 मिनट ही दूंगा. तो मैंने क्या किया, मैंने सब पहले
लाइटिंग का एडजस्टमेंट करके रखा पूरा। फिर मैंने असिस्टेंट को बिठाया, उसके ऊपर सब ये किया, ट्रायल किया। फिर उनको मैंने 1 मिनट के पहले ही फ्री कर दिया, इतना परफेक्ट शॉट किया था। ये मेरिडियन में ही शूट किया हुआ है। ये मेरी एडिटर है, मेरी अच्छी दोस्त भी है। शी इज अ वेरी फेमस मराठी सिंगर, आरती अंकलिकर। उनके हमेशा बहुत क्लासिकल में बहुत बड़ा नाम है, और इनके शूट, उनके सीरीज के ऊपर उनके पिक्चर्स चाहिए थे। ये पुणे में रहते हैं, तो उन्होंने भी मुझे ना सिर्फ 20 मिनट्स और आधा घंटा दिया था, लेकिन मेरी पिक्चर्स निकालने की स्टाइल और उनको मुझे जैसा मूड चाहिए था वैसे करने का हम लोग, शी स्पेंड विथ मी 5 आवर्स, और काफी अच्छे पिक्चर्स हम लोग उनके किए थे। मेरे सब पिक्चर्स उनके पब्लिश भी हो गए। ये भी मराठी एक्टर है, शरद पोंक्षे करके। इनका ड्रामा के लिए इनके कुछ पिक्चर्स चाहिए थे, तो इनका ये ड्रामा का प्रैक्टिस चालू था एक स्कूल में। तो मैंने ये पिक्चर एक क्लासरूम में, स्कूल का क्लासरूम जो रहता है ना, वहां पे शूट किया हुआ है। लाइट मेरे पास ग्रिड था, मैं ग्रिड लेके गई थी, और एक सॉफ्ट बॉक्स था, तो इतनी कम जगह पे और ऐसे में, और उनका चालू था, सब रिहर्सल चालू था। सभी उनको मैंने रिक्वेस्ट करके साइड में आके उनका पिक्चर शूट किया था। बहुत अच्छा लगा उनको भी ये पिक्चर। ये प्लेन सॉफ्ट बॉक्स में किया हुआ फ्रंट पिक्चर। This is a wedding portrait actually. कोई गेस्ट की वेडिंग में आई थी तभी। She's a drummer. अब एक्चुअली ड्रम म्यूजिशियन का पिक्चर शूट करना मुझे तो ये बहुत टास्क लगता है, क्योंकि मुझे ना इसका ड्रम पूरा दिखाना था, ड्रम दिखना चाहिए, और फिर उसका वो एक्शन शॉट चाहिए। अदरवाइज ड्रमर का फोटो शूट करने के लिए सब, मैंने बहुत से पिक्चर्स देखे थे, सब सामने से रहते हैं, बट आई वांट हर स्पेसिफिक। मैंने उसके लिए बहुत पैसा, उसको बहुत तरह से ये किया। हम लोग एक रिसोर्ट में शूट किया है, इसकी पूरी सीरीज, इसका एक वीडियो और फोटोग्राफ, ऐसे सब पूरा शूट किया था उसके लिए। काफी अच्छा शूट किया, उसका एल्बम भी बहुत रिलीज हो गया। शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट, यू नो, द बिग ये मेधा पटकर। इनके पोर्ट्रेट्स मैंने बहुत बहुत ये है, लेकिन इनके पिक्चर्स घर में बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे थे, तो मैं उनके साथ गई थी 2-3 जगह पे, और फिर उनके जो बाहर पिक्चर्स आए वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये पिक्चर्स बहुत जगह पे पब्लिश हो गए, बहुत से साइट्स पे भी यही पिक्चर्स है। नॉर्थ ईस्ट में गई थी तभी। ही इज अ किंग एक्चुअली। वो नॉर्थ ईस्ट का सब पूरा बहुत बड़ा रीजन है। मैंने वहां पे इंटरव्यूज के लिए मैंने 14 इंटरव्यूज एक मैगजीन के लिए किए थे। वो उसमें एक इनका इंटरव्यू था। ही इज अ किंग फ्रॉम दैट एरिया। वो ये इनका घर था। ये मीटिंग के लिए यहाँ बाहर आते थे, यहाँ सब लोग आते थे, और बहुत अच्छा था उनका, और बहुत सोशल रिस्पेक्ट था उन लोग को। शी इज अ मैरी कॉम को मैंने बहुत सालों से मैंने उनके पिक्चर शूट किए, बिफोर शिप, बहुत पहले भी किया। वो पिक्चर आने के पहले से मैंने उनके शूट्स किए हुए। ये जब मैं इम्फाल गई थी तभी का एयरपोर्ट पे हम लोग मिले थे, तभी का ऐसे नेचुरल कैंडिड शूट किया था। नॉर्थ ईस्ट में मैंने 14 इंटरव्यूज किए थे। ये सब एडिटोरियल काम है। पॉलिटिकल ये है पर्सनालिटी, तो उनको मैंने उन्होंने मुझे एक डांस अरेंज करके दिया था। तो वो डांस के पिक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने अभी सिर्फ इनकी पर्सनालिटी रखी है। इनके पोर्ट्रेट्स भी मुझे बहुत अच्छे मिले। फिर बाद में जो इंटरव्यू किया था उनके ऑफिस में,
आई वांट, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था आपके ट्रेडिशनल मुझे ये सब चाहिए करके, तो वो मुझे वो वैसे वो डाल के आए थे। ये कोल माइनिंग से जुड़ी हुई थी, तो इसलिए मैं उनके जो बिजनेस एरिया है वहां पे उनको जाके लेके गई और वहां पे उनका शूट किया था। शी इज इनटू द फ्रॉम माइनिंग और कोल बिजनेस। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा करके सब क्या बोलते हैं ना, दैट इज वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट। तो वहाँ वो सब स्टोरीज मैंने ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट का जो स्टोरी था वो किया था। ये भी मेरा साड़ी में पब्लिश हुआ था, पूरा पूरा सीरीज ही पब्लिश हुआ था। This is again a cottage industry from Assam. This lady is from Assam. सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं और लोगों को इनके ऊपर मुझे शॉर्ट फिल्म्स भी बनानी है, छोटी छोटी, और सब एडिटोरियल वर्क है, बहुत काम चालू है मेरा इनके साथ। She is also another business woman. तो मैंने ऑफिस की वजह से उनके ऐसे फील्ड के ऊपर भी पिक्चर्स लिए, तो एक ऐसा, क्योंकि वहां पे बैकग्राउंड तो ब्यूटीफुल ही है सब जगह पे नॉर्थ ईस्ट में। ये स्पेशली ये आसाम आसाम का पिक्चर है। आसाम में बहुत कुछ हिली एरिया था, वहाँ का ये इनका घर था और ऑफिस था, तो वो एरिया में मैंने ये शूट किया हुआ है। कुछ एग्रो प्रोडक्ट्स थे, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं और उनके थ्रू उनका आना जाना रहता है। दिस इज अ टर्मरिक फार्म। आजकल हम लोग टर्मरिक बहुत सुन रहे हैं। ये पिक्चर मैंने मुझे बहुत मेघालय इज गारो हिल्स, इज हिली एरिया, टोटली हिली एरिया। तो ये गारो हिल्स बहुत बहुत समय लगता है उधर जाने के लिए, बहुत जर्नी है। हम लोग हमें 4 आवर्स जर्नी किया था। पूरा जैसे बोलते हैं ना घाट्स सब है, और इतनी बड़ी बड़ी पहाड़े हैं। ये सब ऐसा लगता है ना कि कितना बड़ा इंडिया है। वहाँ वो एरिया में जब जाते हैं तभी अपने को लगता है। तो एक हिल के ऊपर ये यहाँ की जो टर्मरिक है वो भी बहुत फेमस है। तो ये जो टर्मरिक फार्म था, तो उसके ऊपर मैंने एक स्टोरी बनाई थी, और काफी अच्छी स्टोरी मेरी हुई थी और ये पब्लिश भी हुई है। और इट्स ब्यूटीफुल, इनका वर्क करने का पैटर्न भी बहुत अच्छा था। इसको मुझे ये पिक्चर का ये टर्मरिक स्टोरी का मुझे यूएस कॉन्सुलेट का भी प्राइज मिला था। ये पिक्चर मैंने भेजा था, ये पिक्चर की सीरीज मैंने भेजी थी, तभी ये यूएस कॉन्सुलेट का एक ये था, कंपटीशन था कुछ ऐसे उनको चाहिए था, उनका हर साल रहता है। तो वो सीरीज में मैंने ये स्टोरी डाली थी, तो वहां पे मुझे ये हुआ था, एक्सेप्टेंस हुआ था, और एनसीपीए में ये डिस्प्ले हुए थे उनके प्रोग्राम के थ्रू, और एक अच्छा प्रोग्राम हुआ था वहां पे। हमको उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए थे। दिस इज दैट टर्मरिक फार्म का सब प्रोसेस। ये सब वो फार्म के होने के बाद उनके घर में ही वो सब सुखाया जाता है। दैट इज ये, एंड दैट पाउडर इज, ये एक्सपोर्ट होती है वहां से। बहुत बोलते हैं वहां की जो ये की बहुत फेमस थी। दिस इज ब्यूटीफुल पिक्चर, आई थिंक आई लाइक। अगेन दिस इज वही एरिया का काम है, मेघालय का पिक्चर है ये। इट इज कॉटेज इंडस्ट्री है पूरी। ये स्टोरी ये अपनी दैट इज दिस पिक्चर आई शॉट इन कल्याण डेपो, एसटी डेपो। शी इज वीमेन ये मैकेनिक। ये स्टोरी को भी मुझे प्राइज मिला था। ये पिक्चर मैंने एक कंपटीशन में डाला था, इसमें मुझे प्राइज मिला था, बिकॉज आई एम दिस इज टू एक इस पे ऑफिस में बैठ कर काम करी है और एक फील्ड के ऊपर काम करी है, एंड द ट्रांसपोर्ट इट्स वेरी एक्सप्रेसिव पिक्चर। तो इससे मुझे ये पिक्चर के लिए प्राइज मिला था। These are editorial stories. She is also one traditional instrument, sambal. आसान नहीं रहता है बजाने के लिए, बहुत वेट रहता है इसमें, और वो स्पीड में जितना बजाते हैं उतना उसका पिक्चर बहुत एक्सप्रेसिव हो जाता है। दिस इज आई शॉट ये पूरा नेचुरल लाइट पे शूट किया है।
सिर्फ फ्लेम्स थे आजू बाजू में, और एक बहुत दूर से थोड़ा सा लाइट आ रहा था। ये भी मैंने एक स्टोरी बनाई थी, दैट इज शी इज अ पद्मश्री मैगजीन अवार्डेड नीलिमा मिश्रा करके, इनकी मैंने शॉर्ट फिल्म और एक ये बनाई थी, एडिटोरियल स्टोरी थी इनकी। उनका सब सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम बहुत अच्छा है, इनका भी ये सब मेरे एडिटोरियल स्टोरीज है। शी इज अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी। Again, this is a self-help group. Yeah, this is again that editorial story. This picture is from Meghalaya total. One side lighting, और ये जो ये है घर का चूल्हा जो है उसमें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पैटर्न, जब भी वो सनलाइट एंड मॉर्निंग टाइम एंड वन साइड लाइटिंग, देयर इज नो अदर लाइट। This picture is from Arku Valley. Arku Valley is a very famous in photographers, और हम लोग सब वहाँ पे घड़ी घड़ी बोलेंगे तो भी जाएंगे, इतना है। तो वहाँ पे कॉफी का सब प्लांटेशन है, तो मुझे कॉफी सीड्स कुछ भी करके मुझे शूट करनी ही थी। बाकी सब लोग मेरे को ये फार्म में मैं चल के गई थी, और मुझे फिर ये फार्मर मिली वहाँ पे, फिर मैंने उसके पिक्चर्स किए। ये कॉफी सीड्स, दिस इज अ सेलिब्रिटी, ये सब कॉर्पोरेट है, इंटरव्यूज है। शी इज मराठी एक्ट्रेस, अभी मत्करी करके, इनका पोर्टफोलियो मैंने कुछ पब्लिसिटी के लिए पिक्चर्स बनाए थे। शी इज ऑल्सो मराठी एक्ट्रेस। ये ओटीवी आरजे, इनके पिक्चर्स भी मैंने ये एडिटोरियल है, इंटरव्यू के लिए शूट हुए थे। शी इज ऑल्सो डायरेक्टर। तो ये कैमरा मेरा उनके हाथ में दिया था तो ये फील आने के लिए। ये भी हम लोग पूरे मेरे टेरेस के ऊपर शूट किया था नेचुरल लाइट में। फैशन मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है उसमें। ये मराठी एक मैगजीन है गृह शोभिका के लिए, तो ये मॉडल को चूज करके इसका स्टाइलिंग भी हम लोग किया था। एक्चुअली ये मेरा बैकग्राउंड है, उसने जो डाला है वो मेरे बैकग्राउंड है, तो उसको एक अलग तरह से उसको रैपिंग कर ये करके ड्रेसिंग करके हम लोग ने शूट किया था, और पिक्चर सिलेक्ट हो गया। दिस इज अ कवर पेज, दिस इज अगेन अ कवर पेज। ये मुझे वो एडिटर ने बोल दिया था कि आप ही मॉडल चूज करो और आप ही करो। तो शी इज माय नेबर, एक स्टूडेंट थी, उसको मैंने पूछा था, उसको बोलते ना शी इज क्वाइट फेमस इन वन नाइट। उसका पिक्चर ये मॉडलिंग से जुड़ी नहीं थी, लेकिन शी एंजॉयड अ लॉट। उसका पिक्चर पूरा ये हुआ, पब्लिश हो गया पूरे इस पे कवर पेज पे। दिस इज अ सारी शूट, सूरत के कुछ मैन्युफैक्चरिंग थे उनके लिए। ये ऐसे कुछ गारमेंट वाले लोगों का मेरे क्लाइंट है, तो उनके लिए मैंने शूट किए थे। These are portfolio. This is a natural light, no softbox. This is natural light, no softbox. Natural light. Yeah, people is over. This is a travel. लालबाग का राजा। It's very अभी आजकल हम लोग को भीड़ देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन एक समय था कि हम लोग ये भीड़ में जाके we are it's a very favorite topic for every photographer. ये जो गणेश जी है वो भीड़ के बिना अच्छे नहीं दिखते, तो जितनी गर्दी रहेगी उतना उनका बोलते हैं ना वो पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। तो ये मैंने मिडनाइट में शूट किया था, क्योंकि मुझे वो फ्रंट व्यू नहीं, ये भी एक मैगजीन के लिए मैंने शूट किया था, स्टोरी के लिए।
लेकिन मैं थोड़ी लेट गई थी जहाँ पे जब भी गर्दी नहीं रहता तभी। ये राजस्थान भी मेरा वो ये भी एडिटोरियल स्टोरी थी। ये पिक्चर मेरा बहुत फेमस, ये इसको बहुत समय देके मैंने शूट किया। एक फेयर था और मैं इंतजार किया सनसेट होने तक, फिर मुझे वो ब्लू स्काई और ये लो शटर स्पीड ये सब मेरा पूरा मैच हो गया। और वहां पे मैं एक दूसरी जगह पे खड़ी थी, थोड़ी दूर खड़ी हुई थी, एक प्लेन एक ऐसे ये थी, थोड़ा सा ओपन ग्राउंड था वहां पे। तो वो फेयर से मैं थोड़ी दूर थी, एक ग्राउंड के ऊपर खड़ी थी और वहां से मैंने ये लंबे से ये पिक्चर शूट किया। तो मुझे काफी अच्छा पिक्चर मिला। ये पीछे इसका शार्पनेस इतना है कि ये जो पीछे पोस्टर है वो पोस्टर के नाम भी सब दिख रहे हैं बड़ा करते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पिक्चर। ये रिफ्लेक्शन है लेकिन इसको फील आता है पेंटिंग जैसे। ये मैंने बस से शूट किया था, अरकू वैली जा रहे थे तभी बस चालू थी, तभी वो बस से ही शूट किया था। बनारस, मेरे बनारस के बहुत पिक्चर अच्छे थे लेकिन मेरी हार्ड डिस्क ये हो गई, खराब हो गई। बनारस में 3 दिन गई थी स्पेशली फॉर माय ट्रैवल शॉट्स, और काफी अच्छे पिक्चर मुझे मिले थे, लेकिन अभी मेरे पास वो हार्ड डिस्क नहीं है। एक डैम का जो ये है मेरा गांव में, ये एक डैम का ऐसा जो साइड है वहां का बैक साइड है वो, तो पूरा फॉग था वहां पे। ये वाटरफॉल है केरला का, ये फॉग नहीं है, ये वाटर है। और यहाँ पे वैसे लगाया था, इसके आगे आप जा नहीं सकते। तो केरला में इतने बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल है। ये पिक्चर को मुझे टाइम्स का प्राइज मिला था, क्योंकि ये पानी है। दिस इज नॉट अ वाटरफॉल, दिस इज नॉट अ ये फॉग नहीं है ये। तो मेरा कैमरा भी खराब हुआ था। ये शूट होने के बाद मैंने मेरा कैमरा चेंज कर दिया, क्योंकि पूरा गिला बहुत, क्योंकि उधर कुछ यही नहीं था ना, सामने जाके शूट कर रहा था। और लेकिन आंखों से ही इतना बढ़िया दिख रहा था, तो मैंने बोला कि ये पिक्चर तो कितना बढ़िया आएगा। तो मैंने डेयरिंग किया और मैं नीचे गई, वहां पे अलाउड नहीं कर रहे थे। ये जो थे वो पहले उधर नहीं थे, ये थोड़े पीछे थे, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप मेरे आगे जाओ, और उनको मैंने भेज दिया। और ये पिक्चर अच्छा बना। ये एक्चुअली ये एक आउटिंग था, हम लोग आउटिंग के लिए गए थे। तो ये पिक्चर 2 जन के पास ही है मैं और एक पीएसए का एक मेंबर है, उनके पास रहेगा ये पिक्चर। हम दोनों ही लोग इतने पूरा टेक करके नीचे जाना पड़ा वाटरफॉल में, तो हम लोग गए थे। ये अरकू वैली है। ये अरकू के बहुत फेमस ट्राइबल्स, बोंडा ट्राइबल्स आई थिंक, उनका अभी भी they are into that, they are traditional forms। ये भी आरकू का पिक्चर है। These pictures I got ये acceptance, and this I got ये certificate award, this picture। ये पिक्चर को भी मुझे एक्सेप्टेंस मिला था कंपटीशन में। दिस आई गॉट एक्सेप्टेंस। ये भी अभी महाराष्ट्र में एक जो है पट्टन पकड़ोली, वहां पे सब टर्मरिक वो बोलते हैं ना, ये करते हैं, फेंकते हैं, और वो जो फिर येलो डस्ट आता है और उसपे ऊपर क्रॉस लाइट पड़ता है, क्रॉस लाइट येलो डस्ट, और ये सब लोग उसमें सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस इज वेरी यूनिक पिक्चर्स, लेकिन उसको शूट करना इतना आसान भी नहीं। बहुत क्राउड रहती है, बहुत डस्ट रहता है, कैमरे पूरे ये हो जाते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ से फोटोग्राफर आते हैं। मैं गई कभी, मुझे बाहर के इंटरनेशनल बाहर की कंट्रीज में से भी लोग आए थे, इंडियन तो थे ही, कहाँ कहाँ से लोग आए थे। लेकिन इतने ह्यूज क्राउड में भी फोटोग्राफर्स आर देयर। और मैंने तो एक लड़की से बात की थी, वो बोल रही थी मेरा लास्ट ईयर भी मैं आई थी, लेकिन वो लास्ट ईयर का जो टर्मरिक मेरे कैमरे में गया था ये अभी तक निकल रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये टाइम नया कैमरा लेके आई। इस लोगों का इंटरेस्ट इतना, कुछ कुछ ऐसे फेस्टिवल है महाराष्ट्र में और इंडिया में कि इतने फोटोग्राफर्स आर ऑलवेज रेडी गो देयर with all the risk
वो इतना ये नहीं करते कि हमारा इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, हमारे लेंस में ये हो जाएगा, इतना सोच के कोई काम नहीं करते हैं। जो सोच के नहीं काम करता है उनका काम बहुत बढ़िया हो जाता है। दिस इज दैट ये वहां अंदर भी ये इवेंट, वो मंदिर के अंदर ये इवेंट चालू रहता है। दैट टाइम ये पूरा दिन ये चालू रहता है प्रोग्राम। यू कैन सी द लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स आर देयर। तो मैंने थोड़ा ऊपर से लिया था ये फोटो, क्योंकि मुझे वो सफोकेशन हो रहा था, क्योंकि वो टर्मरिक पूरा ये जा रहा था, नाक में जा रहा था। वी कैन नॉट ब्रीथ, इतनी गर्दी थी। तो फिर मैं टॉप थोड़ी ऊपर थी जहाँ पे थोड़ा भीड़ कम था, तो मैंने ये टॉप एंगल से लिया हुआ। ये अपना ब्रिज, सीलिंग, ये पिक्चर भी मुझे बहुत, ये वाइड शूट है इसलिए मुझे बहुत अच्छा, ये हर एक सीजन में अलग अलग दिखता है। तो ये थोड़े बारिश के समय किया था मैंने शूट। दिस इज एट रायगढ़ राज्याभिषेक। ये अपना बहुत, दिस ईयर वी आर मिसिंग दिस पिक्चर। दिस इज अर्कू। ये इंडिया का वेरी टिपिकल सीन। अभी भी बहुत सी जगह पे, बहुत से रूरल एरियाज में वाटर पाइपलाइंस नहीं है। स्टिल पीपल आर carrying the water from the well. These are the rice fields. In month of October, the rice, उनको वो ये करते हैं, उनके छिलके निकालते हैं। This is a typical scene from Arku. Yeah, this is again that Meghalaya. ये मेरा स्टोरी सावी में, सावी का एक स्पेशल इशू था। उसमें पूरी ये मुझे नॉर्थ ईस्ट की मेरी स्टोरी पूरी ये हुई थी, पब्लिश हुई थी। सब इंटरव्यूज थे उसमें, और ये इमा मार्केट करके वहां पे है, बहुत बढ़िया मार्केट है। तो उसका पूरी पिक्चर स्टोरी मेरी पब्लिश हुई थी। बहुत अच्छा इशू था ये। आजकल हम लोग क्राउड अभी अपने को नहीं देखने के लिए मिलती है, लेकिन हमारे सब पिक्चर जो फेस्टिवल है, जो रिलीजियस एक्टिविटीज है, कल्चरल एक्टिविटीज है, वहाँ पे ऐसे टेम्पल्स के या फेयर्स पे ऐसे सब बहुत से कैंडिड पिक्चर्स मिल जाते हैं। तो लेकिन ये साल हम सब मिस कर रहे हैं। ये भी एक फेमस फेयर है, ये फेयर का मैंने शूट किया था, लेकिन इवनिंग लाइट मुझे इतना अच्छा मिला था, और ये पूरा वो लेन के लेन इसको मैंने शूट किया। फेमस हमारी पिक्चर। ये लोग बहुत फास्ट चलते हैं, अपने अपने लिए रुकते नहीं है। कैमरा मन देखा, कोई फोटोग्राफर देखा, इसलिए ये लोग रुकते नहीं है। ये इनका स्पीड इतना ज्यादा रहता है, इनके साथ अपने को भी भागना पड़ता है, तो वी कैन गेट द पिक्चर्स। ये वो वहां रिंगन करके रहता है बहुत, लेकिन ये मुझे बहुत इतनी भीड़ थी, मुझे पास में जाने के लिए नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे ये जो जो दिख रहा है वो झंडा, वहां पे वो हॉल ये है, घोड़ा है, और उसका वो राउंड होता है। लेकिन मैं पास में नहीं जा पाई क्योंकि भीड़ बहुत थी। This year we are missing all these waterfall shots. You can enjoy here. Yeah. This is Ima Bazaar. This is ये अपनी फोर्ट की जो ये है मस्जिद, monuments. Famous boat race from Kerala. The Jim Corbett Forest. The colors of Rajasthan. मेरा इंटरव्यू आया था वीक में। Yeah, thank you all for listening to my story. Thank Hope you. Fantastic. my pictures. Thank you. Excellent. Enjoy. So, any questions? Like we can just take any questions right now. Hope you enjoyed my picture. It was fantastic. It was good. Thank you. Yeah. So
Ronnie sir, you would like to ask any questions? No, no, thanks. I enjoyed. Okay. Rajan sir. Rajan sir is over here. Rajan sir, we are really lucky to have Rajan sir. Thank you for your presence, sir. If you have any questions. Apologies to Sanghmitra ji. I missed seeing her nice portfolio and no comments. We should thank her that she took time to prepare this and share it with us. आपके मेरे पिक्चर्स कैसे लगे आपको? Hello. सर मेरे पिक्चर्स अच्छे लगे क्या? Sir, your voice is cracking. Your voice is freezed. Your frame is freezed. ठीक है, okay. Hope you enjoyed. Yes, yes. ये जो travel diaries है, diaries जो आपने shoot किया हुआ है, so do you give these pictures to Dinodia or any other stock agencies, so where it gets sold? Yeah, I am a regular contributor to the Dinodia. Okay, so how does the commercials work over there? If in case any picture is getting sold in Dinodia? Yeah, they are sending. लेकिन अभी क्या सब जगह पे मार्केट डाउन है, तो we have to work hard and try it out again and again. I am doing the same thing, whatever the seniors asking, guiding us. Okay. So normally commercials कैसे work करते हैं? If in case the picture is getting sold at 1,000 rupees, so how does the photographer and the agency get commissioned? Like it's like 50-50 you get, or they keep the major margin? It depends on your picture totally. लेकिन एग्रीमेंट में लिखा रहता है it is a 50-50%. 50-50%. Okay. You can't break the agreement actually. The rule is a rule. और एक सवाल था, आपका जो पाव भाजी का शॉट है, आपने कमर्शियली किसी को शूट किया था, आपने पाव भाजी का शॉट हो, और आपने पिक्चर्स को काफी टाइम सेल भी हुआ है, सो आपके क्लाइंट्स लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपके जो कमीशन शॉट्स में से आपने स्टॉक में सेल किया तो? नहीं, वो पिक्चर सेम पिक्चर नहीं मैंने ये किया, लेकिन Okay. वो मुझे इंस्पिरेशन देता है कि वो पिक्चर से मुझे बहुत एक्चुअली पैकेजिंग का शूट कैसा होना चाहिए, ये आइडिया परफेक्टली मुझे वो शूट होने के बाद मिली. ओके. क्या मालूम है, अपना डायरेक्टर और ये जो रहता है अपना मैन्युफैक्चरर रहता है और एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर रहता है और हम लोग फोटोग्राफर रहते हैं और फूड स्टाइलिस्ट रहते हैं, ये 4 जन का टीम रहता है और हर एक का व्यू इतना अलग अलग रहता है कि लेकिन वहां पे ना आपको मालूम होना चाहिए कि आपको ही वहां पे ना मेन डायरेक्टर आप ही रहते हैं कि क्योंकि शूट होने के बाद पिक्चर देखने के बाद पूरा मेहनत तो रहता है, लेकिन समझो मिस्टेक हुआ तो आपको ही डांटते हैं लोग कि ये शॉट सेटिस्फाइड नहीं है करके, तो वहां पे वो रिस्क बहुत रहती है और सुनना कभी कभी पड़ता है कि ये शॉट सेटिस्फाइड होता है, लेकिन क्लाइंट बोलते हैं, इसलिए पैक शॉट के लिए ना बहुत ध्यान देके करना पड़ता है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, ये पिक्चर कहाँ पब्लिश होने वाला है. एक्चुअली मैंने उनको ये भी पूछा था कि आपका बॉक्स का साइज क्या है, ये कौन से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वगैरह, थोड़ा स्टडी करके हम लोग करते हैं ना तो आपको इजी पड़ता है. फिर फूड स्टाइलिस्ट के साथ और आपके साथ जो डायरेक्टर रहेगा उसके साथ शूट करने के लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि आजकल है ना क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर सब लोग पुश करते हैं कि फोटोग्राफर बोलते हैं कि फोटोशॉप में कर दो, तो आर्टिस्ट बोलता है कि ये फोटोग्राफर ने मेरे को ऐसा करके दिया है, तो फिर क्लाइंट बोलता है कि अरे तो वो सेटिस्फाइड, क्लाइंट को फिर अलग ही स्टोरी रहता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं होता, लेकिन ऐसे सब ये रहता है. तो इसलिए आप जितना सबको पूरा थोड़ा पहले जान लोगे कि इसका क्या रिक्वायरमेंट है, ये थोड़ा आप जान सकते हो पहले, तो क्योंकि शूट के टाइम में ना समय बहुत कम रहता है, आप कितना भी प्लानिंग करो, कैसे भी करो, क्या कुछ भी करो, क्योंकि अपने वो सब्जेक्ट ही इतना ऐसा ग्लैमरस है कि एंड टाइम पे आपको खुद को फील आता है कि अरे ये प्रोडक्ट ऐसा रखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, उसको ऐसे लाइटिंग करेंगे तो और अच्छा दिखेगा. तो ये जो वेरिएशंस आते रहते हैं ना, उसमें अपना मेन कंसेप्ट बाजू में रह जाता है, तो वहां पे अपने को स्ट्रिक्ट रहना है. सिर्फ पैक शॉट के लिए मैं बोल रही हूँ
हमेशा जो एडवर्टाइजिंग शॉट है, बैक शॉट है, वहां पे अपना क्रिएटिविटी थोड़ा अपने को डालना है, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट भी समझ के ही अपने को चलना। Okay, one more very important question आया हुआ है. How do you market yourself? Like basically most of the photographers का problem ये है कि they have great pictures in their portfolio. How do you market yourself to the magazine guys or the advertising people or your direct clients? So how do you market yourself? Do you go personally and meet people, or you mail your work, or अभी how persistent you are? नहीं, अपने को अभी थोड़ा थोड़ा काम करके अपने को मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर्स जो मीन्स अभी छोटे छोटे बिजनेस भी रहते हैं, तो उनके जो ये रहता है मैन्युफैक्चरर रहते हैं, उनको आप मिल सकते हैं। इनके बहुत सारे ग्रुप है, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, कम्युनिटीज है, बहुत है ऐसे बिजनेस ग्रुप बहुत है, कि ऐसे नहीं है आपको अभी किधर जाके घूमना है, कुछ करना है, तो आप ऐसे एक दो ग्रुप से रिलेट हो सकते हैं। जैसे बहुत से बिजनेस ग्रुप्स अभी है, और मुंबई में है, आउट ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र और सब जगह पे अभी बिजनेस ग्रुप चल रहे हैं, तो वो बिजनेस ग्रुप का आप थोड़ा हेल्प लेते हैं, तो ये होता है। एडिटोरियल और एडवर्टाइजिंग वर्क आपका पोर्टफोलियो को सपोर्ट करते हैं Okay. बिजनेस करने के। Okay. Any other questions? Like participants को कुछ सवाल पूछना है, they can always ask. Since we have 5 to 6 minutes more. Vinod ji. जी, Rajan sir. If nobody has questions, I just want to contribute some thoughts. Yes sir, please go ahead. This is especially for people in wedding photography and who take exhaustive wedding work. At COC many years ago, there was a discussion for wedding photographers, and I was telling that you cannot load 5,000 and 10,000 pictures and give it to the client, and the client makes a selection, and I mean, this is not the right methodology. This is almost 10 years back. Recently, I was involved in a very high-profile wedding. It's about a year ago, and I don't want to take names, but the approach that I saw by the foreign photographers, there were two groups of foreign photographers who, their method of working, I think there is something that we not realize our responsibility, and we try to don't take any clarification, and we dump everything on the client, or we do not know how to handle it. These photographers, one of them was the royal photographer who shot the last royal wedding here in London of Prince Harry, and he came with a group of 4 others and one additional assistant. And similarly, there was an Italian photographer, and these people, they both came with one post-production guy. Now the whole idea is, I have seen typically with even big Indian photographers, post-production is 3 months after the wedding is over. And this is the wrongest approach. And especially people nowadays are in a big hurry to showcase it on media like Instagram or Facebook or so and so. Even the families, if they are high profile, there is no question to tell them that you will get this after 2 months. They are the only word that survives as a photographer or somebody who has taken a contract is yes sir and yes ma'am. Please remember this. I know this story where even the people who are drawing crores of worth of salaries, when the boss is talking, they can only reply yes sir. Even no is not the part of the dictionary. So those people who think that they can, sit for months and months and give post-produced images and things, artist knows the images. Yes, if client makes a tidbit afterwards that, okay, I want uncle's photo and this photo and that photo, that is besides the point. These both the groups of photographer, they gave selected, I think overall,
after each event was over, so let's say there were 10 days of events. If one day the event was done, almost within 24 hours, that event pictures were available to the client. This is where they get away getting contracts at 10 price we pay Indian photographers. Another thing they did was they were having standard lighting condition, which means post-production becomes a macro work. For example, the guys were shooting with a flash, and the flash was, a dome type thing. They shot almost with equal luminance all throughout the marriage. And that being the case, for them it became, or especially for the post-production, you draw the raw, you give a macro command, 200, 400, 500 pictures at one shot are attended, and then it becomes very easy to tweak the photograph little here, little there. So this is what I observed at that time. And subsequently for the same family, the second wedding, even the photographer was relieved of post-production. They took the CF cards, copied it, or SD cards, copied it, and their internal department, they post-produce the pictures within 24 hours. This is how it works. We have to change, the photographer has to change a little bit of thinking process. I mean, go back to 10 years back, where at the COC meeting, I told people that you cannot talk about giving a client na bhi image nahi se leke aaya. Somebody, I think in Parag sir or somebody, they made a joke कि एल्बम लेके आदमी जाता है तो सामने वाला बोलता है अभी एल्बम का जरूरत नहीं है क्योंकि कपल का डिवोर्स हो गया. You see, you can't waste time because you deliver, you set the terms, I will do the job like this. Even with one local big photographer, I was a mentor to him. I said, what you need to do, your front end may be very good. You may have very good image taking capabilities. But if your back end is not good, which means post-production department is not there or it is weak, in big contracts, you will never win the race. Never. So this is the education. I mean, I consider all these young people or all my fellow colleagues that they will have opportunities in future to do similar contracts because they are coming here to learn something. If they take a cue from this, they will realize how they should proceed in future. You need a little change of mentality in attending to clients. It is very competitive. People are now just ready to do things for a cheap price, and you have to find where your strength lies. So thank you. This is what I wanted to say. Thanks for your valuable advice, Adil sir. It was a fantastic advice. Since most of the people over here are wedding photographers, so this is a great piece of advice to everybody. So we need to be really prompt and fast. Yes. Yeah. So you would like to give a vote of thanks to Sanghamitra ji? Thank you. Go ahead. Yeah, thanks a lot, Sanghamitra ji. So your pictures are really fantastic and really remarkable. And it was a great learning and a viewing experience for everybody of us. So we are really looking forward for a proper demonstration from you regarding food photography very soon once the pandemic opens. Yes. Yeah, Thanks thank you. Sunil, I wanted to announce something. Hello? Sunil, I wanted to speak. Hello, can you hear me? Yes, Please go ahead. इसमें मुझे आज मैंने वेडिंग के पिक्चर्स नहीं डाले थे इसमें मुझे नेक्स्ट टाइम हम लोग जब करेंगे तभी जो वेडिंग का कुछ थीम लेंगे तभी आई विल कंट्रीब्यूट माय वेडिंग पिक्चर्स इन दैट सिनेरियो कि वेडिंग में भी बहुत कुछ जैसे नए स्टाइल से काम प्रमोट करने के लिए बहुत सारी आइडियाज है तो वी कैन डू दैट एंड माय नेक्स्ट सजेशन इज दैट कि हम लोग अभी जैसे स्लाइड शो खत्म होते हैं तो वैसे वी कैन स्टार्ट आवर डेमो लेक्चर्स या थैंक्स टू ऑल कि आपने मुझे मेरे इतना अच्छी तरह पेशेंटली मेरा काम देखा थैंक यू वेरी मच Thank you. Thank you. Thank you, Sanghamitra. Thank you, everybody. Thank you. So, next, yes, sir. हेलो हाँ बोलिए सर. अरे अपने रोहिंटन सर से पूछो ना वो बैकग्राउंड में क्रोमा कैसे किया है. Rohinton sir, there is an inquiry from Jitu sir. Like he is asking which part of India are you in right now? We can see fantastic. It is Matheran.
नहीं वो बैकग्राउंड में क्रोमा कैसे हुआ सर? क्रोमा कैसे हुआ मैंने? मतलब क्रोमा है ना ये? नहीं रे, Background में जूम वाले का है. You can virtual. no, you can put your own backgrounds over here, any background that you want. See, for अच्छा, example, 1 minute, I'll just show that. You go to here where it says stop video and then हाँ, choose virtual background. Where it Okay. says stop video, there's an arrow pointing up. Click on that and then choose virtual background. And now these are the backgrounds, some of them are there. So I have put my Okay, own okay. background. See, that is Okay, my okay. own background I put. You just Fantastic. click on it, it automatically comes there. हाँ मतलब आप मूव हो रहे थे ना तो वो टाइम में थोड़ा सा अब वो पीछे ब्लैक क्रोमा आएगा हाँ वो जूम का डिफेक्ट है एक्चुअली. अच्छा If you are doing this with your if you're taking picture with your cell phone and recording yourself, that will not happen, but with Zoom this is the defect. इवन विजय का भी बड़ा ने भी काफी अच्छा पिक्चर डाला हुआ है. अशोक ने भी अच्छा डाला हुआ है पिक्चर. Thank you, That's thank the you. thing, you can't move. If you move, then there is a darkening behind. Yes. Nothing happened with me because I have used a black background. सही सही. परफेक्ट. Thank you. डेस्कटॉप पे चालू करना चाहिए था ना आपको. सब लोग ने घर बदल दिया. चलो ऐसा हो गया तो चलो तो या परफेक्ट. Okay, chalo. Right. Thank you. Bye. Thank everyone. you everybody. Next meeting, Thank you everybody. Bye. Next Thank you, thank you, thank you. Next Thank meeting. you so much. next meeting we are having next Saturday. So we are having some other photographers who are sharing their experience. So next Saturday. There are, hello, one sec. Vinod, Yeah. some people were suggesting to the timing because they have some classes during 5 p.m. So Why was- we have to discuss on that. The So we timing will on Saturday 5 o'clock. so we will discuss. Yeah, right now we want to discuss. I suppose we should discuss and later put it on the WhatsApp group. Fine, Okay, fine. fine. We'll That discuss is what that I'm saying. because we'll speak to Rajan also, and Yeah. we'll speak and discuss, and we'll let the others know. I suppose this sounds good. Yeah. Okay. Thank you, thank you, Take care. Bye bye. Thank you. Bye bye. Sure. See you. Have a thank you, nice Ronnie. time. Stay Thanks for your safe. time. Bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Thanks, Sangamitra. Bye bye. Thank you.